غیبت میں منتظر ہے لعنت اللہ علی اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صلوات سورہ مبارکہ سجدہ کی 24ویں آیت ہے۔ اللہ ساجدین کا تذکرہ کر رہا ہے۔ پروردگار عالم نے ہمیں جس نظام سے وابستہ کیا ہے، جس گھرانے سے جوڑا ہے، وہ گھرانہ سب سے اچھا گھرانہ ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر یہ کسی سواری پر بیٹھ جائیں اس سواری کی عمر بڑھ جاتی ہے، اسے بیماریوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ حتیٰ روایت کہتی ہے کہ اگر کسی سواری پر یہ بیٹھ جائیں تو وہ بوڑھی نہیں ہوتی۔ لم یسن ولم یحرم، حدیث کا جملہ یہ ہے کہ نہ وہ بوڑھی ہوتی ہے اور نہ ہی وہ بیمار ہوتی ہے۔ گھوڑوں کی عمر 25 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، مگر کربلا میں 50 سال بعد بھی جنگ ہوئی۔ سن 61 ہجری میں نبی کی سواری، سن 61 ہجری میں 50 سال بعد بھی جوان ہے۔ یہ ایک مثال ہے اور روشن مثال ہے اور سب کو سمجھ میں آ جانے والی مثال ہے۔ بہت سے لوگوں کو ذرا دیر سے بات منتقل ہوتی ہے، سمجھانے کے لیے 4-6 دلیلیں دینی پڑتی ہیں اور بعض لوگوں کو دلیلوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ اگر یہ کسی حتی پتھر، اگر یہ پتھروں سے ان کا تعلق ہو جائے تو وہ پتھر بھی بولنے لگتے ہیں۔ جو کہا گیا ہے تختم بالعقیق، عقیق پہنا کرو۔ ابتدائی بیان سے گزر رہا ہوں اس گھرانے کی فضیلت۔ عقیق کیوں پہنو؟ اس لیے کہ یہ اول حجر یشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و ولی۔ یہ پہلا پتھر ہے پتھروں میں سب سے پہلی مرتبہ جس نے توحید، رسالت اور ولایت علی کی گواہی دی۔ کبھی غور کیا کہ یہ قلم کو فضیلت حاصل کیوں ہے؟ میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر یہ اولیاء الہی کے سینے سے جڑا رہتا ہے۔ اللہ نے قلم کو یہ اتنی عزت کیوں دی ہے؟ اب حدیث سنیے۔ اول من کتب بالقلم، جس نے سب سے پہلے قلم سے لکھا، وہ ہوا ادریس، وہ ادریس علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلے قلم کا استعمال جس شخصیت نے کیا وہ ہوا ادریس علیہ السلام۔ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، جماعت جا کے سرچ کر لیں، میں تو عربی میں پڑھ رہا ہوں۔ آج بہت آسان ہے، سرچنگ کر لیں آپ یوٹیوب، اس پہ ڈال دیجئے گوگل پہ اس حدیث کو، سارے حوالے نکل آئیں گے۔ پہلے آپ ہم سے حوالے پوچھتے تھے، آپ صرف ہم سے عربی پوچھا کریں۔ آسان ہو گیا تھا، عربی پوچھ لیجئے اور پھر جا کے خود گوگل پہ سرچ کر لیجئے، بہت آسان ہو گیا، سرچنگ بہت آسان ہے۔ اول من کتب بالقلم، جس نے سب سے پہلے قلم سے لکھا، وہ ہوا ادریس علیہ السلام۔ کتب بالقلم علیہ، اور سب سے پہلا لفظ جو ادریس نے لکھا وہ علی لکھا۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔
सलवात नबी का। जो दिल से बोलेगा वो मन की मुराद पाएगा। होली और वलीउल्लाह लाला हैदरी। माशाअल्लाह, क्या बात है। क्या बात करेंगे मोहम्मद वाले। चेहरे खिल गए ना आपके। मौला अली का जो नबी पाक ने पहला लफ्ज़ लिखा है वो दोबारा कहिएगा। अव्वलु मन कतबा बिल कलम व हुवा इदरीस अलैहिस्सलाम कतबा बिल कलम आलिया। की खुशनुदी के लिए सलवात पढ़ेंगे। ये घराना अगर किसी बेजान चीज से वाबस्ता हो जाए तो उसे भी इज्जत दे देता है। यकीन जानिए कि आपका मकाम, क्योंकि हमारे दिल में अली बसते हैं, अली अली मौला की मोहब्बत हमारी फजीलतों में इजाफे का सबब है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अपनी कद्र जानने की जरूरत है। छोटी छोटी चीजों को रास्ते का पत्थर जाने और हाँ, और हदफ और मकसद को ज़हन में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। माशाअल्लाह। हमारे पेश नज़र ये बहुत सारी उलझने नहीं है। हमें पता है कि दुश्मन हमें किसी तरह से उलझाना चाहता है और इन्हें कोई जाके खबर करे कि हमसे हुसैन छुटेंगे नहीं। हम पैदा होने से पहले के हुसैनी, दुनिया में आए नहीं थे कि हुसैनी है। माँ के शिकम में बच्चा बोलता नहीं है, माँ के शिकम में बच्चा देखता नहीं है, सूंघता नहीं है, चखता नहीं है, लम्स नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ सुनता है। का कहना यह है, आज की जदीद तिब का कहना यह है कि माँ के शिकम में बच्चा सिर्फ सुनता है। और कुरान ने भी यही कहा है कि सबसे पहले समाअत शुरू होती है दुनिया में आने से पहले। हमने इसे समाअत वाला, सुनने वाला बनाकर दुनिया में भेजा है। हमारी माँ का हम पे एहसान है कि मजलिसों में ले जाती थी। इसमें हुसैन से आशना है। लिहाजा बहुत से लोग कुछ फजूल कामों में मसरूफ हैं और पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसा जाया भी जा रहा है। उनका पैसा जाया जा रहा है, हमारा पैसा जाया नहीं जा रहा। हमें तो हुक्म इलाही है कि इमाम बारगाहों को शान से बनाओ। हमें हुक्म इलाही है कि अज़ा खानों को एहतमाम से सजाओ। हमारे घरों से ज्यादा अच्छा कारपेट इमाम बारगाह में होना चाहिए। हमारे घरों से ज्यादा अच्छा फानूस और अच्छी रोशनियां और अच्छी लाइटें, अच्छा इंतजाम और रंग रोगन, दरवाजे खिड़कियां मस्जिद और इमाम बारगाह की होनी चाहिए। अगर अल्लाह चाहता तो कह देता फी बुयूतिन फी मस्जिदिन फी मसाजिदिन। हुक्म इलाही है कि मसाजिद को तामीर करो, मसाजिद का एहतराम करो। हाँ, मसाजिद पर कुरान में 3 से ज़्यादा आयतें हैं। मस्जिद बनाने वाले की अल्लाह ने तारीफ की है और साहिबान ईमान में से करार दिया है इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाह व यौमिल आखिर। जी, जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखते हैं वही है जो मस्जिदें बनाते हैं। ये कुरान में और भी कहा गया कि मसाजिद 2 तरह की हैं। वो मसाजिद जिसमें अल्लाह की इबादत होती है और वो मसाजिद जिनमें अल्लाह के खिलाफ काम होता है। तो बज़ाहिर मस्जिद ही होगी मगर हुक्म होगा इसे गिरा दो। तो नबी को मस्जिद गिराने का हुक्म भी है। तो ये कैसे तय करें कि मस्जिद तो एक जैसी नजर आ रही है, इमारत, दीवार, खिड़कियां और मेहराब तो दोनों में एक जैसी है, मगर ये कैसे तय हो कि ये गिरने वाली है और ये रहने वाली है? उसके अंदर बसने वाले और आने वालों की वजह से। यानी जो मस्जिद में आकर बैठ रहे हैं वो तय करवाएंगे कि ये मस्जिद ज़िरार है। तो वो जो नमाजी आ रहे हैं या जो मस्जिद में आकर बैठ रहे हैं तो उनकी वजह से इमारत के हुक्म में फर्क आ जाएगा। माशाअल्लाह, हर इमारत का हुक्म बदल जाएगा अंदर आने वालों की वजह से। ऐसे ही तो ये जो आयत मैं पढ़ने जा रहा हूँ, उलमा इकराम तशरीफ फरमाए। इस आयत में अल्लाह ने अगर
चाहता तो वो लिख देता कि कह देता कि मसाजिद को हुक्म है कि मसाजिद को सजाओ, मसाजिद को बनाओ। अगरचे कहा है दूसरी जगह, लेकिन यहाँ बुयूत का लफ्ज़ इस्तेमाल है, बैत भी नहीं, बैत भी नहीं, सिर्फ मदीने में नहीं ढूंढना, बल्कि हम तुम्हें 12 घरों का पता बता रहे हैं। बुयूत जमा है बैत की। फी बुयूतिन, सूरह मुबारक नूर आयत नंबर 36, फी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन तुरफ़ा, हुक्म इलाही ये है कि उन घरों को अंतुरफा यानी तामीर करो और ताजीम करो। फी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन तुरफा, उन घरों की तामीर करो, ताजीम करो, उन घरों की तामीर करो, ताजीम करो। ये हुक्म इलाही है किन घरों की? वयुज़्करा फ़ीहा इस्मो, जिसमें अल्लाह का नाम लिया जाता है, जिन घरों में अल्लाह का नाम लिया जाता है। वयुसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल, और सुबह शाम जिन घरों में अल्लाह की तस्बीह की जाती है, जिन घरों में सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह की जाती है, जिन घरों में अल्लाह का नाम लिया जाता है, अन तुरफा, उन घरों को तामीर करो और ताजीम करो। अब मैं मौलाना से दुआ लेने के लिए, अहले नहव सर्फ से दुआ लेने के लिए, ये अन तुरफा का तर्जुमा हम क्या करें? तो कुरान की आयत क्या हुई? फी बुयूतिन अज़नल्लाह, हुक्म इलाही है कि उन घरों को अन तुरफा, मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, तामीर करो और ताजीम करो। वयुज़्करा फ़ीहा इस्मुहु, दर हाली के हाल ये है, वाव हालिया, हाल ये है कि उस घर के अंदर, उन घरों में अल्लाह का नाम लिया जा रहा है। वयुसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल, और सुबह शाम जिन घरों में अल्लाह की तस्बीह की जा रही है। तो हुक्म यह है कि अन तुरफा। अब तुरफा का तर्जुमा क्या करें? मैं इस वक्त तर्जुमा कर रहा हूँ तालिब इल्म की हैसियत से कि उनको तामीर करो और ताज़ीम करो, इसलिए कि रफ़, बुलंदी जो है वो मानवी भी है और मादी भी। मैं इस वक्त दो जीना ऊपर बैठा हुआ हूँ, ये मादी एतबार से आपसे ऊंचा और ऊपर बैठा हूँ, मगर ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं मादी एतबार से ऊपर बैठा हूं तो नीचे बैठने वाला मानवीय एतबार से नीचे हो। मुमकिन है नीचे बैठने वाला अजमत में, फजीलत में, मानवीयत और रूहानियत में मुझसे ऊंचा हो। इसकी मोटी मिसाल यह है कि देबिल कुर्सी पे बैठे होते थे, इमाम रजा नीचे बैठे। देबिल खुदाई जाओ, जाके कुर्सी पे बैठो और जाके मरसिया सुनाओ, तो वो ऊपर बैठे होते थे, इमाम सुन रहे हैं उनसे अपने जद का मरसिया। तो किसी में जुर्रत है कि सोचे कि वो ऊंचे थे, बुलंद थे। वो मादी एतबार से तो बुलंद थे, मगर मानवी एतबार से देबिल बुलंद नहीं थे। तो जो नीचे बैठा है वो ताजीम में ज्यादा है, और जो ऊपर बैठा है वो मादी एतबार से ऊपर बैठा है। तो अब रफ का तर्जुमा हम दोनों करेंगे। तामीर करो, बड़ी बिल्डिंग होनी चाहिए। हमारे इलाके में सबसे ऊंची बिल्डिंग इमाम बारगाह की होनी चाहिए। हमारे इलाके में सबसे ज्यादा मोहतरम इमारत इमाम बारगाह की, कि वहां आते हुए जूतियां उतार कर आओ, बावुजू होकर आओ, ऊंची आवाज में कोई बात ना करो। अब ऊंची आवाज में बात करने की जब वहां इजाजत नहीं है, लड़ने भिड़ने की इजाजत नहीं है, तो मोबाइल चोरी करने की इजाजत कैसे होगी? अगर 4 लोगों के मोबाइल निकले आपकी इस मस्जिद से, अब ये मुझे नाराज होंगे तौकीर भाई, मगर मेरा अपना निकल गया। जब यहाँ खतीब और मौलवी महफूज नहीं है तो आप उसमें डेटा, उसमें मालूमात, उसमें राब्ते, अपने ऊपर खबर रखिए, अपने ऊपर ख्याल रखिए। ठीक है, मैंने इनसे कहा भैया कैमरे लगाओ ताकि जूम करके देखा जा सके किसने ये हरकत की है। अभी एक साहब मुझसे बात कर रहे थे तो उनका पॉकेट खाली किया जा रहा था, अभी बाहर। इसमें कोई परेशान नहीं हो कि मैं बुराई कर रहा हूँ। अच्छा, आपके इमाम बारगाह की बुराई हो रही हो तो आपको परेशानी, और नबी की महफिल से जूतियां चोरी हो जाए। सलवात पढ़ लेंगे मोहम्मद वाले। इससे बेहतर और बुलंद सलवात पढ़।
اس سے زیادہ توقیر بھائی سے برداشت نہیں ہوگا. صلوات پڑھنے ذرا نبی کی ذات. افسوس کی بات ہے یہ جو چند لوگ بیچ میں آ رہے ہیں انہیں کو جا کے بتائے کہ اس سے زیادہ روشن حرام کا مال اور کیا ہوگا. یہ تمہارے بھی کام نہیں آئے گا. ہم نے تو سارا ڈیٹا واپس کروا لیا, سب بلاک کرا دیا, مگر تمہارے وہ کام ہی نہیں آئے گا. لیکن کیا فائدہ ان باتوں کا. یہ افسوسناک باتیں ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے سنا تھا کہیں اور ایسا ہوتا ہے, شاید کہیں اور کے لوگ یہاں آنے لگے ہیں. افسوس کی بات ہے. ایک صلوات نبی کی ذات. دوبارہ مجلس میں آ جائیے, صلوات پڑھتے ہیں. بات آگے بڑھے. فی بیوت اذن الحکم الہی ہے کہ ان گھروں کو تعمیر کرو, ان گھروں کی تعظیم کرو جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور صبح شام اس کا ذکر کیا جاتا ہے. توجہ ہے ماشاءاللہ. ان گھروں کو تعمیر بھی کرو, ان کی تعظیم بھی کرو. اصحاب تشریف فرما ہے. ایک صحابی محترم کی آواز آئی, یا رسول اللہ وہ کون سے گھر ہیں جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور صبح شام اس کی تسبیح کی جاتی ہے؟ سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء. وہ انبیاء کے گھر ہیں جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور صبح شام تسبیح کی جاتی ہے. سوال ہوا, جواب ہو گیا, بات مکمل ہو گئی تھی, مگر جس بزرگ کی جو خدمت ہو وہ یاد رکھنی چاہیے. حضرت ابوبکر نے سوال کیا, یا رسول اللہ ھذا المکان منہا, یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت کے ذہن میں یہ مکان ان مکانوں سے افضل تھا. تبھی تو سوال بھی کیا, کہا یہ مکان, اشارہ کیا مولا علی کے گھر کی طرف, یہ مکان ان گھروں میں سے ہے جنہیں بنانے کا اور جن کی تعظیم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. بے ساختہ سرکار نے فرمایا نعم من افضلها, یہ ان سب سے افضل ہے. تھکے نہیں ہیں, خفا تو نہیں ہے. جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, جب اینٹوں اور پتھروں کا گھر ان اینٹوں اور پتھروں سے افضل ہے تو گھر میں رہنے والے ان سے افضل کیسے؟ اللہ نے انہیں بعد از مصطفیٰ سب سے افضل بنایا. بعد از مصطفیٰ اگر کوئی کائنات میں افضل ہے تو وہ اہل بیت ہیں. پچھلے دنوں ایک کلام کہنے کی توفیق ہوئی, غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں. بہت سارے رستوں میں سراب ہے مگر غدیر کے رستے میں سراب نہیں ہے. غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں, خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں. نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں, اور ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں. بھائی گردن ہلا دیجیے گا, بات جا رہی. ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں, تراب سب ہے مگر بو تراب. اور آپ کی ذوق سماعت دیکھ کر مجھے اس کلام کے 2-4 شعر اور دل کہہ رہا ہے. خدا گواہ ابو طالب کے لاڈلے کے سوا
सिवा नहीं है मिसले रिसालत मुआब कोई, नहीं है मिसले रिसालत मुआब कोई नहीं। करूं मैं तरके तबर्रा, बड़ी नायत तवज्जो आपकी चाहूंगा। करूं मैं तरके तबर्रा, ये गैर मुमकिन है। करूं मैं तरके तबर्रा, जाके समझाओ भाई भाइयों को तबर्रा हमारे यहाँ नमाज रोजे की तरह वाजिब है। हम तबर्रा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें तबर्रा समझाएंगे। तबर्रा गाली देने को नहीं कहते, मुहज़्ज़ब कौमें गालियां नहीं देती, तबर्रा गाली देने को नहीं कहते। तबर्रा अहले बैत के दुश्मनों से ला ताल्लुकी है। सबसे प्यार, बराबर का प्यार, ये पोलरिज्म इस्लाम का नजरिया नहीं है। आज तुम सबको बाद में बराबर कह रहे हो, कल कहोगे शैतान और अल्लाह भी बराबर है। ये पोलरिज्म है ना। सब ठीक है, सलवात पढ़े जरा मोहम्मद सब ठीक है। ये छुरी चलाने वाला भी और जिसके गले पे छुरी चली को भी ठीक। आगे जाके तुम कहोगे कि सारी किताबें ठीक, फिर आगे जाके कहोगे माज़अल्लाह अल्लाह और शैतान भी ठीक। अमेरिका में कॉन्फ्रेंस हुई, पूरी दुनिया में जो बड़े मज़ाहिब हैं उनके सरबराहों को और उनके नुमाइंदों को स्टेज पे बिठाया गया। सुन के ताज्जुब होगा आपको कि उस स्टेज के ऊपर शैतान परस्तों का नुमाइंदा भी बैठा था और मुबाहिदों का नुमाइंदा भी बैठा था। उन्होंने कहा जी यहाँ शैतान को भी मानने वालों का बड़ा बैठा हुआ और अल्लाह को मानने वालों का बड़ा। ये क्या बात हुई? आप किसी को अगर बातिल को अगर अहमियत देंगे तो उसे रस्मियत दे रहे हैं। उस बातिल को अहमियत देके रस्मियत देने वाली बात है। आज आप नीचे की सतह पर कह रहे हैं कि सब बराबर हैं। आपसे कोई बईद नहीं, कल आप सबको ऊपर भी बराबर करें। लिहाजा जो जिंदा कौम है वो है जो तबर्रा भी रखती है। समझो हमारी बात को, मैं आपके तवज्जुह से किसी से कह रहा हूं, हमारी बात को समझो। हम तवल्ला और तबर्रा का मतलब चिढ़ाना नहीं है, तबर्रा का मतलब किसी को चुटकी भरना नहीं है। हमें तो पता भी नहीं था कि तुम उन्हें मानते हो। हमने इस वजह से कि हमें क्या पता था कि तुम भी मानते हो। वो कहने लगे जी वो अजानों में ये कहते हैं खलीफतुहु बिला फस्ल। ये अजान के बाद जो मुअज्जिन है शियों का, ये बाद में कहता है अहले बैत के दुश्मनों पे लानत। तो वो इंतजामिया का एक बड़ा फर्द था, वो कहने लगे मौलाना आपको क्या परेशानी है? कहना ये लानत भेजता है। कहना आपको क्या परेशानी है? कोई ताल्लुक है क्या उनसे? ये चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात आप क्यों बता रहे हैं? आप इसका मतलब है कोई आपका ताल्लुक है? कहने लगे जी खुद मारा था करबला में और फिर कयामत तक अब रोते रहेंगे, काले कपड़े पहनते रहेंगे। तो नक्कन साहब ने तो फैसला कर दिया। नक्कन साहब ने फरमाया कि अगर कल करबला में आने वालों का कोई रंगोबू हमारी तरह था तो हम उन पर लानत, जिन्होंने मारा इमाम हुसैन, हम उन पर लानत भेज के अपना ताल्लुक तोड़ते हैं। तुम्हारा ताल्लुक नहीं है तो तुम भी लानत भेजो। ये तवल्ला और तबर्रा बेदारी की निशानी है। देखिए ये सांस जो मेरा अंदर गया है मुझे नहीं पता वापस भी आएगा नहीं आएगा। मैं खामखा की मसलहतों का शिकार हो जाऊं। और मसलहतें वहां हो सकती हैं कि जहां पर गैर जरूरी और फर्ज कीजिए कि हुक्म सानवी के मसाइल, देखिए जहाँ हुक्म अव्वली के मसाइल है वहाँ हमारा हक है कि हम अपना तारुफ करवाएं। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, तवल्ला तबर्रा, ये हमारे यहाँ फुरुआत दीन में वाजिबात में। एक बच्चा मुझसे कहने लगा मौलाना तवल्ला और तबर्रा को सबसे पहले होना चाहिए, ये आखिर में क्यों रखा है? मैंने कहा जब तहरीर तैयार कर लोगे तो मोहर आखिर में ही लगेगी।
ہمارے ہاں یہ واجبات میں ہے اور گویا مستند بناتا ہے عبادات کو، مگر تبرہ کا مطلب تبرہ کا مطلب گالیاں دینا نہیں جی، لا تعلقی بیزاری ہم نہیں مانتے، ہم نہیں ماننا چاہتے جی بالکل۔ تو آپ ذرا دو مصرع سن لیجئے۔ گھروں میں ترک تبرہ، گھروں میں ترک تبرہ یہ غیر ممکن ہے، توجہ میری طرف پڑھیں، گھروں میں ترک تبرہ یہ غیر ممکن ہے مگر غلط ہے کہ اس کا نصاب کوئی نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ بنانے کا حکم دیا ہے کیونکہ وہ ان سے وابستہ ہے اور یہ اس میں سانس لیتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا گھر ممکن ہے کہ کچھ گھروں میں صبح ذکر ہوتا ہو، شام نہ ہوتا ہو، شام ہوتا ہو ظہر میں نہ ہوتا ہو، تو کبھی ہوتا ہو اور کبھی نہ ہوتا ہو، وہ گھر نہیں، بلکہ وہ گھر کے جو ذاکرین الہی کا گھر ہو اور ایسے اللہ کے ذاکروں کا گھر ہو کہ ان کی وجہ سے اینٹ اور پتھر بھی ذکر کرتے ہیں۔ سنی بھائیوں کی ایک روایت ہے ہمارے عزیزوں کی کہ حضرت امام حسین سفر حج پر تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اپنا قافلہ حسین کے قافلے کے ساتھ ساتھ رکھا، جہاں حسین قیام کرتے تھے میں بھی وہیں قیام کچھ فاصلے پہ کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک رات قیام تھا، ایک صحرا میں خیمے لگائے حسین ابن علی کے نوکروں نے، خادموں نے، غلاموں نے، اور آدھی رات کو مجھے میرے غلام نے سوتے ہوئے اٹھایا کہ حسین خیمے سے نکل کے نہیں جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں میں بھی جلدی تیار ہوا اور میں نے اپنا مصلح اٹھایا اور میں کچھ فاصلے پر جہاں حسین جا رہے تھے پیچھے چلا، تو ایک جگہ حسین نے اپنا مصلح بچھا دیا، میں نے کچھ فاصلے پر اپنا مصلح بچھا دیا اور میں قریب آ کر سن رہا تھا کہ حسین پڑھ کیا رہے ہیں۔ حضرت عمر کا بیٹے عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے کچھ فاصلے پہ مصلح لگا کر سننا چاہا تو میں نے دیکھا کہ جب حسین سجدے میں گئے اور حالت سجدہ میں حسین ابن علی نے یہ ذکر پڑھا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہ امام حسین کی اور ان سے پہلے حضرت ابراہیم کی پسندیدہ دعا ہے، حضرت ابراہیم اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے، یا امام حسین کثرت سے اس مناجات کو سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب حسین ابن علی سجدے میں اس تسبیح کو پڑھ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ پورے صحرا کے کنکر اور پتھر بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ ذاکرین الہی ہیں کہ اتنا کثرت سے ان کا وجود ذاکر ہو جاتا ہے، ان کا وجود ذکر ہو جاتا ہے، ان کا وجود ذکر ہو جاتا ہے۔ یہ ذکر لسانی ہے، ہم تو ابھی جو اس وقت بات کر رہے ہیں، آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، میں کچھ فضائل پڑھ رہا ہوں، یہ ذکر لسانی ہے، یہ ذکر لسانی ہے۔ ابھی ہم نے نماز پڑھی کچھ دیر پہلے، یہ ذکر لسانی ہے، زبان سے ہم نے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جس وقت میں زبان سے ذکر ہو رہا ہو اس وقت ہماری آنکھیں بھی ذاکر ہو، ضروری نہیں ہے اس وقت ہمارے کان بھی ذاکر ہو، زبان ہماری ذکر کر رہی ہے مگر کان کچھ اور سن رہا ہے، آنکھ کچھ اور سن رہا ہے، دیکھ رہی ہے۔ تو ممکن ہے کہ ایک عضو ذاکر ہو باقی اعضاء ہمارے ذاکر نہ ہو، لیکن وہ ہستیاں جن کا پورا وجود ذکر ہے، جن کی وجہ سے پھر اینٹ اور پتھر بھی ذکر کرتے ہیں اور پھر پورا ماحول ان کی وجہ سے ذاکر ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کو ہی حق بنتا ہے کہ ان کا دروازہ مسجد میں کھلے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پھر حق ہے ان کا کہ ان کے لیے یہ
साहब ने आकर कहा या रसूलल्लाह आपने दरवाजे खुलवाए आपने बंद करवाए? फरमाया ना मैंने खुलवाए थे ना मैंने बंद करवाए। अल्लाह ने दरवाजे खुलवाए फिर अल्लाह ने सब बंद करवा के एक अली का दरवाजा खुला जी, इल्ला बाबा अली, सिर्फ अली का दरवाजा खुला रहे। तो दरवाजा मस्जिद के अंदर अगर किसी का घर खुल रहा है तो इसका मतलब यह है कि देखें इस्मत अहले बैत पे सिर्फ आए तथहीर दलील नहीं है। इस्मत अहले बैत पर बहुत सी दलीलों में एक दलील मस्जिद में दरवाजे का खुलना है। मस्जिद में वो आ जा सकता है, वो सो सकता है, वो रह सकता है जिसमें निजासत तारी ना होती है। खुद इस्मत की एक दलील है। ये कैसे लोग हैं कि जिनका पूरा वजूद जिक्र इलाही है, माशाअल्लाह। जब पूरा वजूद इनका जिक्र इलाही है तो वो घर इस काबिल है कि आप उन घरों को ताज़ीम भी करो, उनकी तामीर भी करो। इन जाकिरों में तवज्जो चाहूंगा, इन जाकिरों में जो जिनका वजूद जाकिर जिक्र है, इन जाकिरों में सबसे बड़े जाकिर यही 14 है जिन्होंने मुझे और आप ही को नहीं ये कहकर के सल्लू कमा रहा है तुम उन्हीं सल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ हम ही को नहीं पढ़कर सो दिखाया और हम ही को नहीं कहा कि ऐसे करो ऐसे पढ़ो ये पढ़ो ऐसे कयाम हो ऐसे रुकू हो ऐसे सजदा हो, सिर्फ हम ही को नहीं बल्कि फरिश्तों को भी इन्होंने सिखाया। इबादत का तरीका जिब्रील अमीन को भी इन्होंने सिखाया और फरमाते हैं लौला नहनु मा उबिदल्लाह, अगर हम अहले बैत ना होते तो अल्लाह की इबादत का सलीका ना आता। हमने अल्लाह की इबादत का सलीका और तरीका बताया। जिब्रील अमीन बैठे हैं सरकार की खिदमत में, हजरत ने फरमाया या जिब्रील कम उम्र, तुम्हारी उम्र कितनी है? माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे बच्चे तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारी उम्र कितनी है? 12 साल। आपकी उम्र कितनी है? 10 साल। ये बच्चे जानते हैं कि उम्र बोलते हैं। जिनका तलफ्फुज़ ही ठीक नहीं है वो मकतब बनाए बैठे हैं। सलवात पढ़ने जरा मोहम्मद वाले। या जिब्रील कम उम्र, जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? जिब्रील ने फरमाया या रसूल अल्लाह नजमुन यतलउ मिनस समा बादा 70 अल्फ सना, एक सितारा है जो 70,000 साल बाद निकलता है, मैंने उसे 70,000 मरतबा देखा है। अभी ये भी नहीं बता रहे कि मैं उस वक्त पैदा हुआ था, मेरी विलादत नहीं, उससे पहले का हूं, मैंने देखा है। 70,000 साल बाद एक सितारा निकलता है, मैंने उसे 70,000 मरतबा देखा है और मैं आज देखोगे तो पहचान जाओगे। या रसूल अल्लाह मैंने उसे 70,000 दफा देखा है, फौरन पहचानूंगा। अभी ये मुकालमा मुकम्मल नहीं हुआ था कि सामने से मौला अली आया। जैसे ही मौला अली को आते हुए देखा, नबी मुकर्रम ने फरमाया या अली खुज़िल अमामत अन जिबहतिक, अपना अमामा अपनी पेशानी से ऊपर करो। मौला अली ने अपना अमामा जो पीछे किया, जिब्रील खड़े हो गए, हाज़िही नजमुल लती, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले बेहतर और बुलंद सलवात। या अमीर मुख्तार अली वलीउल्लाह ला हायरी। गर्म होना तो इस अंदाज का नारा लगा। आपसे अर्ज कर रहा हूँ, एक सलवात पढ़ें।
अगर जानवर मंसूब हो जाए तो काबिल ताजीम हो जाते हैं। बेशक बेशक। घर अगर मंसूब हो जाए तो काबिल तामीर और ताजीम हो जाते हैं। वाह 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 वाह। इन्होंने सलीका इबादत का सिखाया। बेशक। आमादा है माशाअल्लाह। ये क्यों फरमाया मौलाना कि सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देख रहे हो। फरमाते सल्लू कमा उसल्ली, नमाज पढ़ो जैसे मैं पढ़ रहा हूं। बेशक। ये देखने वाली क्या बात है? वाह वाह। सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देख रहे हो। ठीक फरमा देते सल्लू कमा उसल्ली, ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ रहा हूं। ये देखने वाली बात। वाह। शायर कहता है कि सरापा दीद किसी की नियाज थी मेरी, सरापा दीद किसी की नियाज थी मेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी। कहते हैं मैं नबी को देखने जाता था, नमाज भी हो जाती थी। वाह 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 वाह। उस मयार का अंदाज, मारिफत। क्या कहना? मैं जैसे पढ़ रहा हूं ऐसे पढ़ो। ये जो अदाएं हैं ना, अदाएं, ये आशिक और माशूक का मसला है। अगर अली से इश्क हो जाए, क्या बात है, अली के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आया। अली में ऐसे गुम हो जाओ जैसे अली अल्लाह में गुम। जब अली में गुम हो जाएंगे तो फिर अली के अलावा कुछ नजर ही नहीं आएगा। अली मौला अल्लाह में गुम हो गए। कोशिश ये हमें भी करनी है, मगर हमें पता है हमारे बस की नहीं है, हमारी तवान में नहीं। हम तो किसी हद तक आगे जा सकते हैं। यही बड़ा कारनामा है हमारा कि हम वक्त पे नमाज ही पढ़ लें, नमाज हमारी कज़ा ना हो, यही हुनर है। ये वाली बात तो अली की बात है कि तीर लग गया, सरकार ने फरमाया जब नमाज में हो तब निकालना। अजीब अंदाज है मौला का। आशिक़े इलाही को अली कहते हैं। अल्लाह का वो आशिक कि जब हालत रुकू में होते हैं तो तीर निकाल लें तो पता ना चले। मगर अजीब है ये आशिक इलाही के हालत रुकू में हो, फकीर सदका मांग लो, हालत रुकू में है, तीर निकाल लिया, मालूम नहीं हुआ, पहले निकाल रहे थे तकलीफ हो रही थी जी, वो बर्छी टूटी हुई थी, कहा अभी निकाल रहे हैं तो अली को मौला को तकलीफ हो रही है, रुकू में जाए हालत नमाज में हो निकाल लेना। नबी ने फार्मूला दिया, तीर निकाला नहीं मालूम हुआ। रुकू में फकीर ने मस्जिद में आके कहा कि कौन है जो अल्लाह की खातिर मुझे कुछ दे। मेरे मौला ने अपना हाथ रुकू घुटने पे रखा हुआ था, थोड़ी देर के लिए फैलाया, वो समझ गया, अंगूठी उतार के ले गया। हमारे सुन्नी भाई कहते हैं अबा हजरत ने गिरा दी, अबा गिराई, वो समझ गया कि ये अबा देना चाह रहे हैं, अबा उठा के ले गया। हमारे यहाँ की रिवायत है कि आपने हाथ का इशारा किया, अंगूठी का इशारा किया, वो अंगूठी उतार के ले गया। वहां हालत में नमाज में तीर निकल जाए तो खबर ना हो, यहाँ हालत नमाज में फकीर की आवाज सुन ली। ये तजाद नहीं है जी, नक्कन साहब का दिया हुआ मसले का, इस मसले का हल नक्कन साहब ने दिया। नक्कन साहब फरमाते हैं जब तीर निकल रहा था तब भी फना फिल्लाह, जब फकीर सदका मांग रहा था तब भी फना फिल्लाह। फकीर ने तो अल्लाह से मांगा था, सुनेगा वही जो वहां होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद सलवात मोहम्मद।
इबादतें सिखाई, जिन्होंने फरिश्तों को इबादतें सिखाई। और फरमाया अगर हम ना होते तो अल्लाह की इबादत ना होती। सलीका हमने सिखाया है, तरीका हमने बताया है, कैसे उसके हुजूर हाजिरी देनी है। माशाअल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, अहले बैत की हक्कानियत की एक रोशन दलील सहीफ़ा सज्जादिया है। ऐसे अल्फाज जरा बोल के तो दिखाओ। लिख कर भी अगर पढ़ोगे तो पढ़ा नहीं जाएंगे। और एक और बात, क्योंकि उस इमाम की उन्वान शहादत की मजलिस है कि जिन्होंने 14 साल मेराज बंदगी में गुजारे। 14 साल मेराज बंदगी में मुसलसल जो अल्लाह की याद में रहे हर हाल में, वो ये कर रहा। ऐसा फरमाया कि अल्लाह की इबादत का सलीका हम बताएंगे, अल्लाह से बात करने का तरीका हम बताएंगे। देखें एक अजीब एक हसीन जुमला मौला अली का फरमाते हैं कि नहनो नुकल्लिमुन नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, हम लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक बात करते हैं। ये नहीं फरमाया हम लोगों से अपनी अक्लों के मुताबिक बात करते हैं। अगर आइम्मा अहले बैत अपने मयार के मुताबिक हमसे बात करें, हम समझ ही नहीं पाएंगे। वो तो हमारी अकल के मुताबिक हमसे बात करते हैं, तब भी नहीं समझ पाते। ये शरह ढूंढनी पड़ती है, लुगत देखनी पड़ती है, मुफस्सिरों के रीशा दवानियाँ और माफ कीजिएगा मुशगाफियों को देखना पड़ता है, और फिर जाकर मौला का एक कौल समझ में आता है क्या फरमाना चाहते हैं। जबकि ये फरमाया हमने तुम्हारी अकलों के मुताबिक, हम तुमसे तुम्हारी अकलों अपनी अकल के मुताबिक हमसे बात करते तो हम समझ ही नहीं पाते। जुमला अर्ज कर रहा हूँ, जब हमसे बोलते हैं तो हमारी अकल के मुताबिक, और जब अल्लाह से बोलते हैं तो अपनी अकल के मुताबिक। लिहाजा जो दुआओं में कलिमात हैं, जो मुनाजात में जुमले हैं, वो इस मयार के जुमले हैं कि वो फिर अपने मयारे मारिफत के मुताबिक बात करें। या मन दल्ला अला ज़ाते ही बिज़ाते, मौला अली का जुमला दुआ का, ए वो जो खुद अपनी जात पर दलील है कि वो है, वो के जो खुद अपनी जात पर खुद दलील है कि वो है। एक जुमले को सेमिनार का मौजू बना दीजिए। इस एक मौला के फ़िक्रे को, मुनाजात के फ़िक्रे को दुआए सबा का जुमला है, जिसे आप सेमिनार का मौजू बना दीजिए और इस पर सारी जिंदगी दानिश्वर गौर करते रहें। ए वो जो खुद अपनी जात पर दलील है। मौला फरमा रहे हैं, गोया मौला ऐलान कर रहे हैं कि मैं अली, हम अहले बैत आसार से मुअस्सिर का पता नहीं लेते। हम आसार से मुअस्सिर की तरफ नहीं जाते। मैं और आप तो आसार से मुअस्सिर की तरफ जाते हैं जी। आसार को देख कर कहते हैं कि कोई है, कुछ है। धुआं उठता हुआ देखा, आग लग रही है, आग देखी नहीं है मगर सब मान रहे हैं कि आग। धुआं उठता हुआ देखा, सब मान लेंगे बगैर आग को देखे हुए कि आग है। हमने असर से मुअस्सिर देखा जी। हमारे वजूद के अंदर जो बारीक और नाजुक निजाम अल्लाह ने बनाया हुआ है जी। ब्रेन ट्यूमर था, किसी के ऑपरेशन हुआ, कुछ दिन के बाद वो कहने लगे जी मुझे खुशबू बदबू नहीं आ रही। तो डॉक्टर से पूछा गया, उन्होंने कहा हाँ जी, इस कनपट्टी के ऊपर वो रगें गुजरती हैं जो खुशबू बदबू की है। क्या बारीक, क्या नाजुक निजाम अल्लाह ने बनाया। जिनको खुशबू बदबू नहीं आ रही वो जानेंगे कि कितना बड़ा नुकसान हो गया। जिन्हें आ रही है उन्हें पता ही नहीं कि खुशबू बदबू का फायदा कितनी बड़ी नेमत है कि खुशबू आ रही है और बदबू आ रही है। मालूम है जी, बदबू आ रही है और बदबू नहीं आ रही और बदबू है तो कितना नुकसान कर बैठेंगे। सलवात पढ़ ले जरा। मिसाल है, मिसाल। अब हम मुअस्सिर से, माफ कीजिएगा, असर से मुअस्सिर की तरफ जाते हैं, मगर मौला फरमा रहे हैं कि हम असर से मुअस्सिर की तरफ नहीं जाते। हमें सूरज नहीं बताएगा कि अल्लाह है,
مولا فرما رہے ہیں ہمیں چاند نہیں بتائے گا کہ اللہ ہے، ہمیں نظام شمسی اور اس کائنات کا نظم نہیں بتائے گا کہ اللہ ہے. ہم ان چیزوں سے اللہ نہیں سمجھتے، اس لیے کہ ان چیزوں کی خلقت سے پہلے کے ہیں. سورج نہیں تھا، علی تھے. نہیں تھا، مصطفیٰ سرکار تھے. تو یہ ان چیزوں سے اللہ تک نہیں پہنچتے. مولا فرما رہے ہیں ہم تو خود اللہ سے اللہ تک پہنچتے ہیں. اب اس معیار کی گفتگو کوئی لا کر دکھائے، کرنے دیجئے کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے برابر میں بٹھانے کا عمل. کسی کے بولنے سے کوئی علی کے برابر میں نہیں آ جائے، کسی کے بولنے سے کوئی امام حسین کے برابر نہیں ہو جائے. حسین مولا اللہ نے بنائے، مولا علی کو اللہ نے سجا کر بھیجا ہے. سرکار دو جہاں کو اللہ نے سجایا ہے، سنوارا ہے، پھر بھیجا ہے. خلقنی اللہ ثم ارسلنی، پہلے اللہ نے مجھے سجایا ہے پھر بھیجا ہے. سرکار فرما رہے، نبی فرما رہے پہلے مجھے سجایا ہے، سنوارا ہے. تھک تو نہیں رہے میری بات؟ یہ جو مسلسل اس گھرانے میں ان گھروں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو تعمیر بھی کرو، ان کی تعظیم بھی کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ان گھروں میں رہنے والے اللہ کے وہ ذاکرین ہیں کہ جو خود ذکر الہی. ذاکر اگر ذکر بن جائے تو پھر یا علی مدد کہنے کا ثواب یا اللہ مدد کہنے کے برابر ہے. ذاکر ذکر ہو گیا، کثرت سے ذکر کرنے کی وجہ سے وہ ذاکر اب ذاکر نہیں رہا بلکہ وہ خود ذکر الہی. اب جنہوں نے وہ ذائقہ نہیں چکھا، جنہوں نے اس گھڑے سے پانی نہیں پیا، انہیں یہ ذائقہ کیسے آئے گا؟ ماشاءاللہ. کہ صاحب یہ شرک کر رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کو نہیں مانتے، یہ مولا علی کو مانتے ہیں. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ موحدوں کا مجمع ہے، یہ موحدوں کا مجمع ہے. خدا کے بعد نبی، نبی کے بعد علی. اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں. ترتیب میں خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی. یہ ہے نصاب تشیع کا. صلوات پڑھیں محمد و آل جی. یہ نصاب ہے ہمارا، خدا کے بعد نبی، نبی کے بعد علی. یہ ہے نصاب تشیع کا. اور مناظرے کی بحث ہونی نہیں ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ مناظرے پر پابندی ہے. میں تو صرف اتنا کہتا ہوا گزروں گا کہ یہ جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے وہ سب گفتگو اللہ سے قریب کرنے کی. اس لیے کہ جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ جس ذات نے یہ کہا کہ ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے، اس ذات کو اللہ نے قیامت تک اس کی نبوت کو رکھنا ہے. اذانوں میں آج بھی آپ کہہ رہے ہیں اور قیامت تک کہتے رہیں گے. اور جب تک صاحب آ کر ہمیں نیا حکم نہیں دے گا اور ہم کہتے رہیں گے محمد الرسول اللہ خاتم النبیین کہتے رہیں گے. لیکن ایک شبہ ہمارے اوپر ڈالا جاتا ہے، میری تمہید میں ہی مجلس گزر گئی. ایک شبہ ہم پر ڈالا جاتا ہے کہ ہم خاتمیت کے قائل نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں علی نبی جیسے، اور پھر امام حسن، پھر امام حسین، یہ سب نبی ہیں. ہم نے نبی نہیں کہا ہے، یہ نبی نہیں ہے. تمام کمالات علی میں وہی ہیں الا لا نبی آبادی. سرکار فرما رہے ہیں سارے کمالات علی تم میں وہی ہیں جو مجھ میں ہیں، بس فرق یہ ہے کہ تم میرے بعد نبی نہیں. پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ سب سارے محمد ہیں، کلنا محمد، اولنا آخرنا و اوسطنا کلنا محمد. تو اس کے اوپر قرآن سے ایک آیت اور اس کی دلیل. ہم کس دلیل کی بنیاد پر؟ قرآن سے بات ہونی چاہیے نا. بہت سے لوگوں کا شوق ہے. سورہ مبارکہ شعراء آیت نمبر 219
किस बुनियाद पर हम कहते हैं कि अव्वलुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद? कुरान क्या है? तक़ल्लुबुका फिस साजिदीन, ऐ मेरे हबीब मैं तुम्हें साजिदों में पलटाता रहूंगा। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। नबी को अल्लाह पलटाता रहेगा। कभी अली की शक्ल में होंगे, कभी मौला हसन की शक्ल में होंगे, कभी इमाम काजिम की शक्ल में होंगे। यानी मैं अगर यूं कह दूं कि अगर इमाम काजिम के जमाने में नबी होते तो यही होता, यही फराइज होते, यही अंदाज होता। आईने नबी, मेरे नबी मौला आईने 12 छोड़ के गए, और आईने में और तस्वीर में फर्क है। तस्वीर वो दिखाती है जो था, आईना वो जो दिखाता है जो होना चाहिए है। 5 साल पुरानी तस्वीर है, 5 साल पुराना हाल बताएगी, अगर आईना तो हाल का हाल बताएगी। ये 12 आईने हैं जो नबी छोड़कर गए। कोई कद आदम नबी के बराबर है तो उसे अली कहा, कोई छोटा आईना है तो उसे गोद में उठा लिया। भाई सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। बाद में कुछ तस्वीरें नजर आएंगी तो बिला तशबीह, जैसे आप आईने में देख रहे होते हैं पीछे आती हुई चीजें, तो वो नजर आ रही होती हैं, वो आप पीछे रही होती हैं, अगर आपको नजर यहाँ आ रही होती है। तो बाद में जो तस्वीरें आती रहेंगी, जो अदाएं आती रहेंगी, जो कैफियतें आती रहेंगी, वो नबी ने पहले से ही बता दी हैं। लिहाजा ये जो सातवां आईना है नबी का, नबी अगर होते तो यही होता, यही अंदाज होता।